Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading the chapter 2 of history book From Trade to Territory. चिल्ड्रन प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई और उन्होंने ट्रेड शुरू किया और अपने ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने किस तरह से अपना स्टेप्स उठाए, धीरे धीरे करके उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। और इसी कड़ी में हमने देखा कि प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, क्योंकि मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला के साथ में था उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। So, after the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to taken over directly. Soon, the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay rupees 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of buildings the company fort and offices at Calcutta. तो प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की हार के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इसके बाद कंपनी चाहती थी कि वह नवाब की जो भी काम है प्रशासन की जो भी जिम्मेदारी है उनको वो ना उठाए, क्योंकि बिना उसको उठाए जब उनका काम चल रहा था तो वो जिम्मेदारियां क्यों उठाते। तो उनका मेन उद्देश्य तो क्या था, अपने व्यापार को फैलाना था। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि कंपनी को ये महसूस हो गया, समझ में आ गया कि जो नवाब हैं वो भी उनका फुल्ली उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभी वो भी उनका विरोध कर देते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पपेट के रूप में उन्हें इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद भी वो उनकी बात नहीं मान पाते थे, क्योंकि प्रजा के सामने भी उन्हें अपना सम्मान, जो नवाब होते थे उन्हें भी अपने सम्मान बनाना पड़ता था, अपनी इमेज बनानी पड़ती थी। तो कंपनी ने फिर जब जो मीर जाफ़र था उसने थोड़ा थोड़ा विरोध शुरू किया अपोजिट में, तो इसके बाद कंपनी अब क्या करती, तो कंपनी ने फिर मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। अब जब मीर कासिम को नवाब बना दिया तो
धीरे धीरे वो भी विरोध करने लगा और पहले तो उसने हाँ में हाँ मिलाई, उसके बाद उसने भी अपोज करना शुरू कर दिया। तो फिर बक्सर की लड़ाई फिर से 1764 में कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुई और इसके बाद फिर से बंगाल का नवाब जो था वो मीर जाफ़र को बना दिया गया। अब मीर जाफ़र जो था उसे कंपनी को 5 लाख रुपीज़ देने पड़ते थे ताकि जो कंपनी है वह जो वार होगी उसमें ट्रेड होगा उसको बढ़ाने में कई चीज़ों में वो मतलब अपना खर्च करेगी, तो उसे देना पड़ते थे। इसके बाद जब मीर जाफ़र की डेथ हो गई 1765 में, तो कंपनी का मूड चेंज हो गया और कंपनी ने यह डिसाइड कर लिया कि जो नवाब होते हैं भले ही वो हमारे पपेट हैं लेकिन वो सारा कहना नहीं मानते हैं। तो जो उनका मीर कासिम का जो उनका एक्सपीरियंस था, उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम खुद ही अपने आप को नवाब बना लेंगे। तो फाइनली 1765 में जो मुग़ल एम्परर थे उन्होंने बंगाल में कंपनी को ही दीवान घोषित कर दिया। अब इससे कंपनी के पास बहुत सारी पावर आ गई और वो टैक्स वगैरह वसूलने लगे। पहले वो क्या करते थे, गोल्ड और सिल्वर लाते थे ब्रिटेन से ताकि यहाँ से चीज़ें खरीद सकें, लेकिन अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। वो यहीं से उनको इतना टैक्स मिलने लगा नवाबों के द्वारा और नवाब तो वो खुद ही बन गए थे, उन्हें टैक्स मिलने लगा कई चीज़ों से, क्योंकि दीवान बन चुके थे तो उन्हें कई प्रकार की चीज़ों से उन्हें टैक्स मिलने लगा। तो उनका खर्च वैसे ही चलने लगा। उससे वो अपनी आर्मी को मेंटेन करते, वो अपना जो है सिल्क और कॉटन को परचेस करते हमारे भारत से, और जो कैलकाटा में जो है फोर्ट बनाते, अपने ऑफिसेज बनाते, बिल्डिंग्स बनाते, इन सब चीज़ों के लिए वो खर्च करने लगे। Company officials became Nawabs. What did it mean to be Nawab? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like Nawab. अब नवाब का मतलब क्या था? नवाब का मतलब ही था कि पावर और अथॉरिटी जो है वो कंपनी के हाथ में आ गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, इसका एक और मतलब था कि जो कंपनी के सर्वेंट थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे, वो अपने आप को नवाब के रूप में देखने लगे, नवाब के जैसे रहीसियत उनके दिमाग में आने लगी। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amazed fortune in India. He had come to Madras from England in 1743 at the age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 401,102 rupees. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. अब देखिए, नवाब, सभी लोग अपने आप को नवाब जैसा, उनके कंपनी के जो ऑफिसर्स थे अपने आप को नवाब जैसा सोचने लगे और वो नवाब जैसी रहीसियत उनके दिमाग में जाने लगी। यहाँ तक कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो जब वो भारत आया तो उसकी एज 18 ईयर की थी, लेकिन जब वो भारत से वापस गया 1767 में, जब वो आया था 1743 में, जब उसकी एज 18 थी, और जब से वो 1767 में गया तब उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो उसकी धन था उसके पास, वो 401,102 पौंड हो चुका था। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास हो चुकी थी। और जबकि कंपनी ने उसे करप्शन रोकने के लिए भेजा था, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की वजह से कंपनी को डाउट हुआ कि यह इतनी प्रॉपर्टी इसके पास कैसे हो गई, और उसके बाद उसकी पूछताछ हुई। हालांकि कंपनी ने उसे बरी कर दिया इस आरोप से कि उसने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन उसके बाद 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह
से बहुत सारी ऐसी ऑफिसर्स थे जो कि रॉबर्ट क्लाइव की तरह, जो कि धन कमाते थे, पर्सनली धन भी कमाते थे, नवाबों को प्रेशराइज करते थे कि वो उनको धन दें। और जो यहाँ से कुछ बहुत कुछ तो बीमारी और कई चीज़ों की वजह से ख़त्म हो गए, लेकिन जो कुछ धन को वापस ले जा पाए, उन्होंने वहाँ पर एक अच्छी लाइफ जी और लोग उनको नवाब से बोलते थे। और उनके ऊपर वहाँ ब्रिटेन में कार्टून्स भी बनते थे कि ये देखिए रातों रात किस तरह से अमीर हो गए हैं। Company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influences before annexing an Indian kingdom. After the Battle of Buxar 1764, the company appointed residents in Indian states. They were political or commercial agents, and their job was to serve and further in the intersect of the company. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. Sometimes the company forced the states into the subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company, but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. For example, when Richard Wellesley was Governor General, Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801. As he failed to pay for the subsidiary forces, Hyderabad was also forced to cede territory on similar grounds. अब देखिए, कंपनी जो थी, कंपनी ने कभी भी ऐसे एरिया में डायरेक्टली, यदि 1757 से 1857 की बात की जाए तो इन 100 सालों में कंपनी ने कभी भी डायरेक्ट ऐसे एरिया में अटैक नहीं किया जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। ऐसे राज्यों में उन्होंने अटैक नहीं किया, बल्कि वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड से वहाँ पर उन्होंने वहाँ उस किंगडम में घुसपैठ की। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी जो थी, उन्होंने इंडियन स्टेट्स में अपने एजेंट्स को वहाँ पर अपॉइंट किया और उन एजेंट्स का काम था कि जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करें। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे कि जो राजा लोग हैं जो हैं और जो दूसरे प्रकार के सूबेदार वगैरह हैं, वो जो है कंपनी पर विश्वास करने लगे और धीरे धीरे वो पॉलिटिकल और सोशल रूप से उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने लगे। तो अब जो इंडियन रूलर्स थे, जो उनसे सब्सिडायरी एलियंस के रूप में वो क्या करते थे कि जो नवाब लोग उनसे हाथ मिलाते थे, वो उनको कहते थे कि आप हमसे हाथ मिला लीजिए, हम आपको आर्मी प्रदान करेंगे, काय के लिए, ताकि आपकी सुरक्षा के लिए। तो जो लोग उनसे हाथ मिलाते थे और उनको अपने यहाँ अपॉइंट कर लेते थे, वो कंपनी उनको प्रोटेक्ट करती थी खुद की आर्मी से। उन्हें खुद की स्वतंत्र आर्मी रखने की आज़ादी नहीं थी और बदले में उन्हें मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए कंपनी को पेमेंट करना पड़ता था। यदि वो कंपनी को पेमेंट नहीं कर पाते, ड्यू हो जाती, तो जो कंपनी थी वो उस राजा या उस नवाब के राज्य को छीन लेती थी। एग्जाम्पल के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 के बीच में, तो अवध के नवाब जो था वह कंपनी को 1801 में पे नहीं कर पाया, जो भी मिलिट्री का जो फीस थी मेंटेन की वो नहीं पे कर पाया, तो उन्होंने उसका आधा राज्य छीन लिया। ऐसे ही हैदराबाद में भी हुआ, उन्होंने बहुत सारे राजाओं के राज्य इसी तरह से छीने और कब्जा कर लिया। Children, after the diplomatic policy, we will study about the टीपू सुल्तान, the tiger of मैसूर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे।